नहीं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं सूरज सिंह, भारत का इंजीनियर, सिविल इंजीनियर फ्रॉम भारत इंडिया। दिस इज स्पीकिंग फ्रॉम भारत इंडिया ऑन 26th October 2021. Some problem in videos. I'm going to talk about power of solve. Power of solve. In this connection, I have given you many videos before also, and last time I tried to include this, but I failed. Some problem. Now again there's some problem, but still I try to continue. I am not finding indication of live, but there's some problem. There is, of course, but no problem. I will continue. Let me see how it works. There's no indication of anything here. No, nothing. No entry coming in. And let me see how it works. Alright, let me see how it works. No problem. No issue. Now I was talking about Nehru. About Nehru, whose date of birth is 14th November 1889. 14 नवंबर 14 नवंबर 89, 14/11/89, 14 date, 11 month and year 89. Year 89, total is 114. 14 plus 11 plus 89 is 114. इसमें 14 देखिए, 14 indicates entry material or lead material or authority material. You can say emotional one, indicate entry emotions or lead emotions or authority emotions. Then 11 indicates unlimited entry or unlimited exit. 89 indicates destiny based on system power or alliance power or coordination power. Total is 114. 4 plus 1, 5 and 9, 14, 1, 8, 9 and 1, 11, 10 and 1, 11, 114. 4 बजे 10 मिनट, 4:10. 114 कुछ नहीं. 114 indicates unlimited entry move or unlimited lead move or unlimited exit move. Actually, I'm not getting an indication of this. Maybe some problem is there in that. I don't know. There's a problem in this gray list. It's not coming out. But I'm not able to know whether this video is being recorded or not recorded. But gray is coming in. Then I don't know what's happening actually. What's happening is giving signals, but not no indication whether video is being recorded. Yes, I'm continuing it. Let me see if record or my time is go waste. Now I'm saying is 14, 11, 89 and 14. 14, 11, 9, 6 और 14. आप देखिए 14 का रिजल्ट 86 है, 14 का रिजल्ट 86 है. इसका मतलब है कि 86 सिस्टम और वर्क दोनों काम करेंगे साथ में 14 की सपोर्ट में, 14 के रिजल्ट में. 11 का रिजल्ट 68 है, जिसमें हम कहते हैं कर्व ऑफ
और सिस्टम दोनों हैं। 89 का रिजल्ट 536 है, जिसका मतलब है कि सीक्रेट मेकिंग है, वर्क है साथ में, डिसीजन है साथ में, और आप कह सकते हैं कंट्रोल मेकिंग प्रोसेस है। 536, 5 कंट्रोल, 3 मेकिंग एंड 6 प्रोसेस। 114 का 686 रिजल्ट है, इसका मतलब है सिस्टम वर्क, सिस्टम वर्क, सिस्टम वर्क, और सिस्टम सराउंडेड बाय अनलिमिटेड वर्क। Result of 14 is 86, result of 11 is 68, result of 89 is 536, and 114 is 686. 14 is 86, as I told you, which means system work. 68, 11 is 68, which means work system, and 89 is 536, which is secret making work. And 114 is 686, which means work system work. So 14, which is entry emotion, its result is 86. 11, which is unlimited entry, its result is 68. And 89, which is system power, its result is 536. And 114, that is unlimited entry, woo, is 686. Now let's go to rolling. Rolling, which is also very powerful if we can understand. It's very powerful in one way or other. You can say support of 14 is 88. 1 is 8 and 4 is 8. Support of 14 is 88, and that is unlimited system. Support of 11 is 88, of course unlimited system. And support of 89 is 52. System power 89, that is system power, and support is 52, that is secret material. If you go down further, ruling indicates value of 58.3%, and that is here. You can say 58.3% here, 58.33%, which is good one for others to recognize him as Nehru. Means it's less than 60, but even then it is 58%. And it may not dominate. इसको ये दूसरों पे अपना राज करे ऐसा नहीं है, करेगा कुछ हद तक, बट नॉट डोमिनेट। सपोर्टिंग नंबर में 8 and 5 and 3, 8 5 और 2 होते हैं, 8 5 and 2। इसमें आप देखेंगे 8 11 टाइम्स आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है, 2 1 टाइम्स आ रहा है। इस सबसे अबंडेंस इसमें 8 की है। 8 की अगर आप देखें टोटल 8 5 2 14 है, 11 2 and 1, ये यहाँ के हिसाब से आप देखेंगे तो मिल जाएगा। जैसे इसमें देखिए ये सपोर्ट 8 8 8 है, 8 है, 8 8 बहुत डोमिनेट कर रहा है यहाँ। ऐसे ही 6 8 6 8 6, आप ये देखें 8 नंबर को ज़्यादा ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11. You can say here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इनमें 11 टाइम्स 8 आ रहा है, 11 बार, और 5 सिर्फ यहाँ आप देखें एक बार, 2 बार, और 2 तो एक ही बार है। ये क्या बताता है? 58% टोटल है, और 8 नंबर 11 बार आ रहा है। ये एक बहुत अजीब सा केस आप कह सकते हैं। इसमें क्या है आप देखें, सपोर्ट नंबर 8 is 11. It says support number 8 is 11. Support number 8 is 11, 5 is 2, 2 is 1. ये कहता है 8 11 बार है, एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट सिस्टम है, सिस्टम की बाहर है, एक्सेलेंट सिस्टम है, सिस्टम वर्क बहुत ज़्यादा है इस ज़िंदगी में। यहाँ 14 में से 14 में से 11 बार आपका 8 आ रहा है, और 5 2 बार आ रहा है, बहुत कम, उससे 1/4 1/5 कह सकते हैं, बिलो एवरेज है 5 नंबर।
कंट्रोल्स की प्रॉब्लम, सीक्रेसी नहीं मेंटेन हो प्रॉब्लम, और 2 नंबर एक ही बार आ रहा है, मटेरियल नहीं है, बहुत कम। मीन्स इस व्यक्ति ने मटेरियल और इंफॉर्मेशन की कमी रही होगी, मटेरियल नहीं था, कंट्रोल्स भी नहीं थे, लेकिन सिस्टम बनाया। सिस्टम बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर कुछ नहीं बनता दुनिया में तो सिस्टम नहीं बनता, और कुछ ख़राब होता है तो सिस्टम ही ख़राब होता है। और सिस्टम अगर ख़राब है तो फिर आप कह सकते हैं सब कुछ ख़राब है। सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ होती है जिससे हमारी भी ज़िंदगी चलती है। हमारे शरीर का सिस्टम, हमारी आत्मा का सिस्टम, यूनिवर्स का सिस्टम, और कोई भी सिस्टम, कोई भी ढांचा आप कह सकते हैं जो काम करने वाला ढांचा है, अगर वो सही ना हो, इस केस में बहुत है वो। ये एक अपने आप में मैं कह सकता हूँ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस, शायद बहुत बड़ी बात समझने के लिए सिस्टम बनाना। और शायद बना सिस्टम उस टाइम। आप सोचिए कितने यूनिवर्सिटी खुली, कितने कॉलेजेस खुले, कितनी डेवलपमेंट हुई होगी उस समय के हिसाब से। उसका हम आज हाइपोथेटिज्म भी नहीं ले सकते, कल्पना भी नहीं ले सकते। सिस्टम तो बना था, अभी तक है, अभी तक भी चला, उसके बाद और आए। प्रॉब्लम तो उसको होती है जो शुरू शुरू में काम करता है, बाकी तो चलती गाड़ी को चला ही लेते। मैं किसी की तारीफ करने नहीं ये नंबर बता रहा आपको, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ इसमें क्या खास बात है। देखिए 14 नंबर 14 और यहाँ 114, 114 और यहाँ 14। माइंड 89 का, दूसरों से डील करने के लिए 11। देखिए कई बातें, अजीब सी बातें, अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं यहाँ पे। 14, 114, 114 टोटल नंबर 114। इसकी अपने आप में सपोर्ट बहुत बड़ी है, 888। आई एम टॉकिंग ऑफ सपोर्ट। जैसे हमने यहाँ लिखा 114 की सपोर्ट 888, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। इसको समझना भी अपने आप में, कहना कि एक ऐसा ढांचा था वो अपने आप में जो गर्म दिमाग होने के बाद, दिमाग देखिए 89 जाल है पावर का, 8 का मतलब जाल, 9 का मतलब पावर। लेकिन एक और कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें था 8 और 9 का। 8 का मतलब इनविजिबल है और 9 का मतलब आग है, पावर है। एक ऐसी बिना दिखने वाली शक्ति, बिना दिखने वाली आग, दोनों बिना दिखने वाली। आग होगी तो अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा होगा तो आग नहीं होगी। लेकिन जब दोनों साथ हैं तो कैसी प्रॉब्लम होगी, इस चीज़ को भी समझिए। 9 नंबर छोड़ता नहीं किसी को और 8 नंबर बनाता है सबको, क्योंकि वो सिस्टम है। आप सोचिए अपने आप में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे हालात में जब आपके पास कुछ भी ना हो, in that situation when you got nothing and you have to do everything. What a situation that is. You have to do everything and you got nothing, no support, nothing, and you have to create everything. सोचिए स्क्रैच से आगे बढ़ना, स्क्रैच से शुरू करना, उसके लिए तैयारी पहले ही इस नंबर ने दी। 114 अनलिमिटेड एंट्री मूव, अनलिमिटेड एग्जिट मूव, अनलिमिटेड एंट्री मूव। एंट्री मिली, काम कीजिए, दोनों का सम 6 है, 1 + 1 + 4 6 है। दिमाग की पावर जाल के साथ अग्नि है, स्ट्रगल है, और लीडरशिप है दूसरों से डील करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए, और भावनाएं साथ में हैं। एक ऐसा नंबर जिसको ना आप बहुत सॉलिड कह सकते हैं ना बहुत लिक्विड कह सकते हैं। दिमाग लिक्विड नहीं है, 89 है, लीडरशिप है लोगों के साथ और उसे डील करने के लिए, फिर क्या कहें इसको आप? यही प्रश्न उठ जाता है। तो मैंने इसमें काफ़ी सोचा और इसको अलग रख के बात करने की बात की, क्योंकि एक यूनिक नंबर, बहुत कम ऐसे नंबर होंगे, मैंने शायद इतने नहीं देखे
अब आप थोड़ा आगे चलें। ये कहते हैं हम तो 58% हैं, 58% आई एम। ओके, यू आर 58%, बट यू आर ओरिजिनल। आपकी कमांड्स बहुत हैं, क्योंकि 1-1 में भी कमांड आती है, लीड करना अनलिमिटेड या पीछे हट जाना। इधर मंथ में भी कमांड आ रही है, डेट में भी कुछ कमांड है, और ईयर तो अपने आप में जाल है पावर का। तो आप कह सकते हैं जब ये व्यक्ति अकेला है, आप इसमें से 11 निकाल दीजिए, 103 बच जाता है। When this person is alone in room, it is 103। मेकिंग या ब्रेकिंग 3 नंबर की वजह से, एंट्री या एग्जिट 10 नंबर की वजह से, और जब सबके साथ है तो 114, बस यही फ़र्क है। 103 नंबर यहाँ फूड देता है माइंड का, क्या करना है समझाता है अकेले में। मतलब ये कि अकेले में माइंड 89 भी है, 14 भी है। 89 और 14 मिल के काम करते हैं तो 103 बन जाता है। कितना गुस्सा होगा, कितना सोच होगी, कितना सॉल्यूशंस निकालने होंगे, जाल होगा माइंड का, और भावनाएं भी साथ में होंगी, तो 103 होगा। इसका आंसर है 620, 620। अपने आप में घनघोर, अपने आप में विशाल नंबर 620। इस बात को समझाने के लिए आपको थोड़ा सोचिए। ये नहीं कह रहा कि जवाहरलाल नेहरू अच्छा था या ख़राब था, मुझे वो बात नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ नंबर को समझाना है। एक मैं बता दूं, मैंने इसमें शुरू में शायद टाइपो एरर हो गई होगी। जैसे हम 14 का मतलब लिख दिया हमने एंट्री मैटेरियल, एंट्री मैटेरियल नहीं है, एंट्री मूव है, शायद गलती से मैटेरियल लिखा गया, या लीड मैटेरियल। ये 4 नंबर की पावर आती है, या मैटेरियल नहीं है, मूव है, इमोशंस है। ये मैटेरियल बाई मिस्टेक आ गया, 4 नंबर मैटेरियल नहीं होता, मूव होता, इसलिए मैं करेक्ट बाद में कर दूँगा। अभी आपको बता रहा हूँ, ये मत सोचिए, कन्फ्यूज ना कीजिए। बाकी अनलिमिटेड एंट्री है, एग्जिट है, और सिस्टम पावर है, और यहाँ अनलिमिटेड एंट्री मूव है, अनलिमिटेड लीड है, तो बाकी सब ठीक है। और ये 14 इज 86 रिजल्ट, 11 इज 68 रिजल्ट, 89 इज 536 रिजल्ट, 114 68 इज 6 रिजल्ट। और रिफ्लेक्शंस तो अब आप देखिए क्या कहता है। अप टू एज 14, 15 to 29, 30 to 43, 45, यहाँ 14 नंबर का डिफरेंस है। 14, 15, 29, 30, 43, 44, 58, 14 नंबर का फेस चल रहा है इसमें। क्या 114, इसमें छोटे छोटे नंबर बचपन के चल रहे हैं, जो कि शायद इतना वर्क ना करें यहाँ पे। अब आइए मेन में, एक नंबर 15, जब ये व्यक्ति 15 का होगा, एट स्टार्ट ऑफ 15, तब ये सीखना शुरू किए होंगे। एट ऑफ 15, 15 साल की उम्र से, और चल दिए 29 ईयर्स तक, 15 साल से 29 ईयर्स। और यहाँ आप देख रहे हैं लर्निंग फेस एक की वजह से, यह एक की वजह से लर्निंग फेस 29 तक। और उसके बाद 30 साल की उम्र, 30 ईयर्स, मैटेरियल फेज आ गया, लाइफ को मेटेलाइज करने का। ठीक है, मैटेरियल फेज का मतलब पैसे से ही नहीं है खाली, आप किस पर्पस के लिए आए हैं, आपका वो मैटेरियल सामने आएगा। 30 वर्ष, 30 साल, और 43, 30 से 43 तक का मैटेरियल फेज। और उसके बाद 44 की इससे मेकिंग और ब्रेकिंग फेज, 44 से 58 तक होना चाहिए, 54 तक, सॉरी, ये 58 तक, यस। 3 नंबर चल रहा है, और उसके बाद 4 नंबर की शुरुआत 59 में, आप देखेंगे तो 72 तक के चला। उसके बाद ज़िंदगी बचेगी तो आगे चलेगा, नहीं बचेगी तो अलग बात है। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि इसका क्या मतलब है। ये तो रहा 1 और 2 का फेस, और अब आप देखेंगे यहाँ भी एज 14 तक नॉर्मल मिसलिनियस अप्स एंड डाउन्स एज चाइल्ड, 15 से 29 तक, 15, 29,
यू कैन से लर्निंग पीरियड, वही के नंबर की वजह से। उसके बाद 2 नंबर की वजह से मैटेरियल पीरियड, 3 नंबर की वजह से मेकिंग एंड ब्रेकिंग बोथ। बात भी काफ़ी हद तक सही। और अगर हम देखें इसका रिज़ल्ट 686, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट नंबर, जिसमें डोमिनेशन 6 की है, बीच में सिस्टम है 686। 6 माइंड का नंबर। अगर हम इसको 8 को बीच में रख के काउंट करें, अनलिमिटेड माइंड सिस्टम, माइंड बहुत काम कर रहा है, सिस्टम बीच में है। अगर आप इसको 666 माने तो माइंड मैसिव बन जाता है, लेकिन एक जगह 8 है। सिस्टम ही माइंड है यहाँ, माइंड ही सिस्टम है यहाँ। माइंड, माइंड और बीच में सिस्टम, यहाँ और कुछ नहीं है। टेंशन है, कैलकुलेशन है, आप कह सकते हैं प्रोसीजर है, थिंकिंग है, डिसीशन है, जजमेंट है, एनालिसिस है, रोमांस भी है। बहुत सी प्रॉपर्टी जो 6 और 8 की हैं। 8 तो सारे में होता है, ये तो कंप्लीट नेटवर्क में होता है, लेकिन 6 जब आ गया तो माइंड आ गया। और माइंड की पावर आप जानते हैं, और साथ में सिस्टम आ जाए तो बात कुछ और हो जाती है। और इससे आप देखेंगे तो यहाँ 29 वर्ष तक 2 नंबर की कमी नहीं दिखाई दे रही है इसकी फेजेस में। ये 2 नंबर आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है चेंज 30-31 की से, और इस 686 अपने आप में टेंशन देने वाला, हैप्पीनेस भी देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देगा, टेंशन भी देगा, हैप्पीनेस भी देगा। ये अपने आप में एक ब्रिलियंट सिस्टम है। और इसलिए ये बात समझना अपने आप में, इस चार्ट को, बहुत बड़ी बात है। ये चार्ट अगर आप समझ जाते हैं, आप नंबर को छानबीन कर सकते हैं, नंबर का ढांचा समझ सकते हैं। इस नंबर को मैं इसलिए स्पेशली बता रहा हूँ कि स्पेशल नंबर है। कमांड ना सही, दिमाग तो है, 58% है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं जानता हूँ रोलिंग, लेकिन शायद माइंड बहुत है, माइंड की पावर बहुत है, और यही चाहिए होता है लोगों को लीड करने के लिए। और माइंड भी ऐसा जिसमें दोनों पॉइंट दिए हैं, 8-9। जाल है नौका, कह सकते हैं आप, जाल है नौका, इनविजिबल पावर है। आप ये कह सकते हैं पूरे सिस्टम में नो है, सिस्टम ऑफ 9। पूरे सिस्टम में आग है, पूरे सिस्टम में शक्ति है, और शायद ये ज़रूरत नहीं होगी उस टाइम। यहाँ किसी की तारीफ नहीं हम कर रहे हैं। और भी सिस्टम हमने आपको बताए पहले, जैसे हमने आपको पहले बताया, इससे पहले सिस्टम जो बताया हमने वो था किसका, आप देखें, वो था शायद गांधी का रहा होगा, MK गांधी। 2 दशमलव तक यहाँ पे माइंड 69, वहाँ 89। फ़र्क देखिए, वहाँ 89 है, यहाँ 69 है। यहाँ 6 की पावर ज़्यादा चल रही है। एनालिटिक और 9, यहाँ भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर इसलिए है, गांधी की बात कर रहा हूँ। 6-9 का माइंड, 6 तो अपने आप में माइंड का नंबर है, और 9 आपका नंबर है। अब आप सोचिए क्या कॉम्बिनेशन रहा है माइंड का। 6 नंबर सोचेगा, 9 नंबर डिले कर देगा, आग लगा देगा, बहुत सी बातें। 6 नंबर सोचने का है, एनालिसिस का है। 9 नंबर सोचने नहीं देगा, कहेगा नहीं जो है ठीक है। ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर है थोड़ा सा, लेकिन 10 नंबर लीड का नंबर है, वो लीड देता है, एक्सिट भी देता है। 2 नंबर तो मैटेरियल का नंबर है, सीधे साधे, बंठन के रहना नहीं, थोड़ा आमतौर पे डेड सी लाइफ।
यही फ़र्क है इन दोनों नंबर्स में। अगर आप 14-11 की बात करें, यहाँ पे देखिए इमोशनल बहुत दे रहे हैं आगे, 4-8-8 इमोशनल अनलिमिटेड सिस्टम तो था उनका। 4-8-8 इमोशनल डाइल्यूटेड थे, 88 था उनके पास, सिस्टम में रहते थे, अलग नहीं रहते थे। ये भी एक बात ज़रूरी है जो थोड़ा डिफ़र करती है यहाँ पे। देखिए यहाँ थोड़ा डिफ़र करती है। अगर आप नेहरू का देखें 8-9 है वहाँ 6-9 की जगह, लेकिन लीड है यहाँ पर, और लीड प्राइवेसी में भी है इमोशन के साथ। इमोशन में बहकर भी लीड देना आसान। ये नंबर था हमें संविधान का, संविधान का 26-1-50। हालांकि संविधान मानव नहीं, लेकिन बॉडी तो है, कुछ परफॉर्मेंस तो कर ही रहा है, इसलिए ये नंबर बॉडी पे भी लागू हो सकते हैं। इसमें देखिए 50 नंबर है, हालांकि अपने आप पे नहीं है, वो दिया गया है 50 नंबर, कंट्रोल का नंबर है। संविधान कंट्रोल करने के लिए तो था, इसका क्या हक हो, कौन क्या करे, वही तो संविधान है ना 1950। और ये लीड क्वालिटी का है क्योंकि एक में है, 01 में लीड तो है ही है, या पीछे हट जाएगा या आगे रहेगा, लेकिन अभी तक तो लीड दी है। कुछ लोग ख़राब करना चाहें वो अलग बात है। और ये आपका 26-26 मेटल और माइंड, और टोटल 77, जो उसको ढीला कर देता है। ढीला लेकिन कंट्रोल फिर भी है क्योंकि 7 और 7 14, 5 5 ढीला करने वाला नंबर। और इससे पहले हमने स्टडी किया, ये नंबर जो कि है आपका देश की स्वतंत्रता का, जहाँ पे हम 422 रिजल्ट के साथ 70 नंबर रखते हैं। ढीला ढाला, हमारी स्वतंत्रता भी एक तरह से कहिए सॉफ्ट तो है, लेकिन ढीली है, नुकसान नहीं देगी लेकिन डायनेमिज्म नहीं है। बस ये 4 नंबर मैंने दिए, मैंने इसलिए ये 4 नंबर लिए कि ये हमारे लिए सबके लिए लागू होते हैं। आपको हम बताएंगे आगे और दूसरे नंबर्स के बारे में, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा मैं आता हूँ दूसरी जगह, जो कि एक अलग सा नंबर है जिसको हम कहते हैं सैटर्न और यूरेनस नंबर। उससे मैं इसमें फार्मूला कलेक्ट करके लिया है, ये कहीं मिला मुझे फार्मूला, कि मेरा अपना फार्मूला नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने रखा है। जैसे उसमें 6 का डिफरेंस आता है, मैंने बताया 6 का डिफरेंस है हमारे फार्मूले में, इसमें 3 का आता है। 3 का single digit differs by value 3, which means positive making or negative making, or negative making means breaking. So adjudication may be making based on breaking based. 3 नंबर बनाता भी है, 3 नंबर तोड़ता भी है। और वहाँ 6 नंबर का जो माइंड का भी नंबर है, काम का भी नंबर है, बस दोनों में इतना फ़र्क है। लेकिन ये क्या है, देखिए मैं यहाँ किसी ग्रह की या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ ये है कि इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ कि सैटर्न नंबर एक तरह से जुडिशरी का नंबर है, न्याय का नंबर है। और ये आसान नहीं है, जैसा भी आप करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। बात वहाँ आ जाती है, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तो मिलना ही मिलना है आपको। आप जो भी कर लीजिए उसका कुछ ना कुछ तो आएगा ही आंसर आपके पास। और वो इतना आप कहें या ना कहें, इतना ख़राब नहीं हो सकता, आंसर तो आएगा ही आएगा। अभी तक मुझे देखिए ग्रे में आ रहा है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे कहाँ कितना पोजीशन में, ये कितना नंबर हो चुका है, कितना मिनट्स हो चुका है, जान नहीं पा रहा हूँ। एंड यही एक आज की प्रॉब्लम है इस वीडियो में। फेसबुक शायद सो रहा है क्योंकि एयरटेल काम कर रहा है, उल्टा हो गया आज। खैर कोई बात नहीं, जिसको जैसा करना है करे।
हम जितना जा सकते हैं जाएंगे। अब देखिए इसका जो फार्मूला है इस सेटर का, जिसमें अगर आपके जो भी नंबर्स हैं नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हम दोनों लेते हैं इसमें, ये रिज़ल्ट है न्यायालय का, और न्यायालय में आपको नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी होगा, आपके जो भी काम आपके आएंगे, गंदा करेंगे गंदा रिज़ल्ट आएगा, गलत करेंगे गलत रिज़ल्ट आएगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, बेशक सेटर ना भी हो, आप जैसी मेकिंग करेंगे वैसा रिज़ल्ट आएगा। इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 है, वहाँ 6 था या 3 है, और वहाँ 2 जोड़ देते हैं, यहाँ आपको 12 जोड़ना है, बस इतना फ़र्क है। कोई भी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 जोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा सैटर्न का, या आपने कर्म के रिजल्ट का। जो भी आपको पनिशमेंट मिलनी है, सज़ा मिलनी है या अवार्ड मिलना है, वो इसमें आएगा। नेगेटिव हो पॉजिटिव, इसलिए हमने नेगेटिव से भी लिया, -143 से लेकर, और हम सब नंबरों में जा रहे हैं। और देखिए हम 0 पे पहुँचेंगे, और ये आपके नंबर सारे माइनस प्लस, और ये देखिए हम पहुंच गए अब 0 पर। इसका रिजल्ट 3, क्योंकि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 जो 12 ही रहा, और 3 आंसर। अब पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 6 9 13 3, जैसे 369 369 369, ये कंटिन्यूशन ऑफ 369 रहेगा इसमें, 369 369 3 6 9 3 6 9। और पीछे की तरफ जाएंगे नेगेटिव की तरफ, तो देखिए -3 -6 -9, -3 -6 -2 -3 -6 -2, इस तरह से चलता जाएगा। उधर नेगेटिव की डिफरेंस है, इधर पॉजिटिव का डिफरेंस है, 3 6 9, और या 9 6 3 9 6 कर दीजिए, बात एक ही है। नेगेटिव में 0 to -3 0 to +3 0 to -6 0 to +6 0 to -9 0 to +9, इसी तरह से ही चल रहा है। मतलब इसमें डिफरेंस 3 का है, हर कैलकुलेशन में, ये बात भी हमको समझ नहीं होती। और अब देखिए किसी का भी नंबर हमने यहाँ 154 तक लिया है, कि जहाँ तक भी लिए हैं, कहीं तक भी आप ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके चार्ट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। खांसी हो रही है। कोई भी नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 12 जोड़ेंगे, रिजल्ट आएगा, और उसके साउंड में तो वही आएगा, 7 3 10 से 18, 7 3 10 5 15 6, इस तरह से ही आएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, और इसका मैं आपको पहले को असल में नंबर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं इस वर्क में, और मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरह समझ लें इसको, ताकि दिक्कत ना हो पढ़ने में। कहाँ गए भाई, ये थे कहाँ चले गए। ये ड्रैगिंग का चल रहा है यहाँ पर। ये बहुत अजीब से नंबर में दिखा रहा हूँ आपको, पहले बता दूँगा, क्योंकि ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है बार बार। आप ये देख रहे हैं, डायरेक्ट सीरीज रिजल्ट्स बाय प्लेसिंग सब्स्टिट्यूटेड डिजिट 3 टाइम्स एंड डिवाइडेड बाय 3। एक तो इसमें है कि हमने डिजिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे 111 है, 3 बार हमने रखा, नंबर को 3 बार रखा, और उसके सब्स्टिट्यूट जैसे 111 का 888 है, सब्स्टिट्यूट तो एक ही आएगा, 8 आए, 5 आए, 2 आए, जैसे 2 2 में 5 5 है, 3 3 में 2 2 2 है।
और हमारे पास आंसर आ गया। ये वो नंबर है जो आपको इनडायरेक्टली आप सोच सकते हैं कि अगर आप बहुत मेहनत करें, करते रहें, रुके नहीं, जिद पे आ जाएं, आपकी आत्मिक शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि नहीं जी हमें तो काम करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। जब ऐसी सोच आपकी पल जाएगी, जो कि बहुत कम होती है, हर एक में नहीं होती है, तो 1 2 3% लोग ही होते होंगे ऐसे जो अपनी जिद पे आ गए, नहीं भाई हमको करना है चाहे हम मर जाए। वो जो लिमिट होती है ना, वो एक ऐसी लिमिट होती है जो शायद हर एक में नहीं होती है, और भगवान कहता है आपको मेरी जगह बैठ के ही करना है। भगवान अपने आप को आपके अंदर डाल देगा, और उसमें जो रिजल्ट आएंगे वो ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट किया गया। आपकी जगह एक ऐसी एनर्जी भेजी गई जो भगवान की एनर्जी, और उसने काम किया। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आपके हाथ में। वो ये नंबर है कि आपने डायरेक्ट, और आप किसी नंबर का भी निकाल सकते हैं, कोई उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यही निकालें आप। किसी भी नंबर को आप ले सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट देखिए, यहाँ डायरेक्ट किए हुए हैं, डायरेक्ट नंबर्स वाले ये हैं। ये देखिए डायरेक्ट नंबर के हैं। जैसे एक नंबर है 3 बार लिखा, ये जो मैंने लिया है यहाँ पर, ये मैथमेटिकल पर्पज़ के लिए, आपको सीखना नहीं है। ये है, इसको मैंने 3 बार रखा, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, और डिवाइड किया 4 से। अगर हम अपना एफर्ट्स करें, हमें ज़िद ना आए, दूसरी अपनी ईमानदारी से एफर्ट्स करें, तो उसके ये रिजल्ट आएंगे। 3 से डिवाइड किया हमने रख के, और यही आया 37 144। इनकी मीनिंग तो वही होंगे जो थे। ये इंडिकेट करता है, ये हर एक के लिए कॉमन नहीं है। ये तब है जब आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी शक्ति को देखिए, हर बात को मेटल में मत तोलिएगा। हर बात मेटल में नहीं तुलती है, हर बात रिजल्ट में तुलती है। आपने क्या किया? कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं दिमाग से, शरीर से, लेकिन वो कहते हैं मैं वो रिजल्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट तो मिला ना, सवाल तो एक, कुछ तो मिला। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस टाइम महसूस नहीं होती हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई बच्चा करता है, उसका रिजल्ट उसको उसी टाइम तो नहीं मिलेगा। हाँ, पास होना फेल होना रिजल्ट नहीं है, वो एग्ज़ाम का रिजल्ट है। लेकिन लर्निंग करता है। और ये सैटर्न की वही लिस्ट जो मैं आपको दिखा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये। अगर आप समझेंगे तो, नहीं तो नहीं समझे, कुछ नहीं कर सकता कोई इसका। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। मैं जानता हूँ ये इंटरेस्ट सबको नहीं होता है, लेकिन जिसको भी होता है हो। इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है, और समझने की बात अलग है। अभी शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं नहीं जानता यकीन है कि नहीं है इन नंबर्स पे, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको जब तक एप्लीकेशन करेंगे इसकी, समझ नहीं आएगा। और एप्लीकेशन का मतलब है कि अगर आपने ये नंबर समझ लिए जो हमने आपको बताने की कोशिश की है, जैसे हमने आपको बताया नंबर्स का, इनका रिश्ता क्या है आपके नंबर का आपसे, और इसमें बहुत सारे ऐसे लिए हैं, जैसे हम आपको बताएंगे। हमने लिंक किया था पहले, काफ़ी पहले, जो शायद इस टाइम पीडीएफ में काम नहीं करेगा। इसमें धीर से लिखा, थर्मोसॉल, कम्युनिकेशन कैसे होती है नेचर से, स्पिरिचुअल सर्किट, माउंट्स करेक्टर्स, ब्रेन लेफ्ट हेमिस्फीयर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड राइट हैंड, हाई स्टेटस एंड invisible system, phenomenon that operates, potential drop, zero circle, circles or stations, invisible spiritual envelope, doctors, scientists, engineers, spiritual numbers, and general indications. Now, interpret these numbers in a different way, as this from that does a drag series, centuries, digits,
numbers interpretation 1 to 999, direct series, schedule of super Colson series, efforts and work oriented numbers, procedure to interpret chart schedule, drag series, ruling effect, combined effects of persons and spouse, whether some person shall cooperate with one, how friendship may work, supernatural behavior of a person, momentary interpretations, reflective number supplementary interpretation. Book covers many interpretations, hyperlinks. ये एक ये एक इसमें क्या है उसके मैंने पहले हाइपर लिंक किए थे उसी पेज में पिछले फॉर्मेट में वर्ड के में कि हम यहाँ से क्लिक करें सीधा वहाँ पहुँचें। इसमें वो काम नहीं करेगा क्योंकि मेरी बुक ही चेंज कर रही है, लेकिन ये एक तरह से इंडेक्स है। धीरज जी क्या है हमने आपको समझाया, अलौकिक दुनिया जिसमें हमें कुछ पाना है जो हमारे सामने नहीं। कुछ लोग कहते होंगे भाई ये सब्जेक्ट तो सब जानते हैं, ठीक है आप जानिए, अगर आप समझते हैं ये वही सब्जेक्ट है जो आप जानते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। इट्स नॉट सेम एज यू नो, इट्स डिफरेंट वर्ड। यू नो अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा, न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि मैं उसको न्यूमरोलॉजी मानता ही नहीं, है ही नहीं। हम न्यूमरोलॉजी की बात ही नहीं कर रहे, हम तो आत्मा की बात कर रहे हैं, हम तो सॉल की बात कर रहे हैं। सॉल में जो शक्ति है, सॉल में जो अग्नि है, पावर है जो सॉल में, उसको हम थर्मोसॉल कहते हैं। और थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, हीट। सॉल की गर्मी को समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ सॉल, यू हैव टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ सॉल, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉल डज, हाउ डज इट डू। दैट इज थर्मोसॉल, टेम्परेचर ऑफ सॉल। How is your soul working? Where it's going to? What does it do? This is very important factor that we have to understand. सॉल कोई खेल नहीं बच्चों, सॉल असली है, सॉल आप हैं। सॉल शरीर नहीं है, शरीर को बनाने वाला है। आपका शरीर जो बना वो सॉल की वजह से बना। अब आपकी सॉल कैसी है, आपके सॉल ने कितना काम किया, हाउ मच इट वर्क, व्हाट इट डू, it depends. Even now you are in body, you are a soul. How much you want to regard your body, it's up to you. How much you want to enrich your soul, it's up to you. आप अपने सॉल को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, कितना अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने शरीर को, अपने सॉल को कितना अच्छा रखना चाहते हैं, क्योंकि सॉल माइंड है, माइंड से एनर्जी मिलती है। एनवायरनमेंट से है, ऊपर वाले से है। माइंड ऐसा इक्विपमेंट है, हमारे शरीर का पावर हाउस भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन वहाँ पे पहुँचना इतना आसान नहीं है, हर व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता। माइंड का 1% होता है, 10%, 15%, 20%, वो चाहिए आपको जीने के लिए, वो आपको मिलेगा। मैंने पहले भी बताया 1 2 3 4 ये शरीर के असली नंबर है, बाकी माइंड के नंबर हैं। 1 2 3 4 का मतलब है लिंग पे, वीर्य के क्षेत्र पे या गर्भ क्षेत्र पे, सूढ़ी क्षेत्र पे और दिल क्षेत्र पे। ये सारे आपके जीने के नंबर हैं, आपकी मशीन को चलाने के नंबर हैं, आपकी आत्मा और बॉडी को प्राइम करने के नंबर हैं। यहाँ तक तो सब जाएंगे ही जाएंगे, जब तक जीवित रहेंगे। यू हैव टू गो देयर। उसके बाद उसके ऊपर उठना है तो आपको स्वयं उठना होगा। और सही पूछे तो कर्म वहीं से स्टार्ट होता है, कर्म वहीं से स्टार्ट होता है। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर आप 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 8 तो वैसे सारे में है, शरीर के बाहर भी है, शरीर के अंदर भी है। 8 के बिना तो कोई रह नहीं सकता, सिस्टम का नंबर है। तो 5 नंबर, 6 नंबर, 0 नंबर, 9 नंबर, इनको पाना है। 0 और 9 को पाना भी मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है, क्योंकि वो जाना तो आपको 6 के थ्रू ही पड़ेगा। 7 नंबर। तो थर्मोसॉल में कितना संचार होगा ये हम सबके हाथ में। आपकी सॉल, आपकी शक्ति बिजली की, जितना बड़ा अप्लायंस उतनी ही वोल्टेज की ज़रूरत, उतनी ही वाटेज की ज़रूरत।
वो वोल्टेज 140 भी हो सकती है, वो वोल्टेज 240 भी हो सकती है, जिस देश में रहते हैं उसके हिसाब से। कौन कितनी पावर से चलती है मशीन, कौन इक्विपमेंट कितनी पावर से चलता है, ये आप जानते हैं। उसी तरह से आपका माइंड, आपका मस्तिष्क कितनी पावर चाहता है, आपका काम, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, वॉट पावर डस इट रिक्वायर, यू नो इट वेरी वेल। अगर हर आदमी पावरफुल हो जाएगा तो क्या आसान नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, मैंने देखा है कई बार, वो भी पावर नहीं रखते पढ़े होने के बाद भी, क्योंकि पढ़ाई बहुत छोटा हिस्सा है ज़िंदगी का, बहुत छोटा हिस्सा। ये बात की आपको समझनी होगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ाई से हम अपने आप को खाली मेज़र नहीं कर सकते। मेज़र करने के लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। हम जो पढ़ते हैं कई कई साल, 14 साल, 16 साल, 20 साल, वो पढ़ाई पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, जॉब के लिए पढ़ते हैं। हम उसको लाइफ में अप्लाई नहीं करते, बहुत कम जो अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन अपने आप से भी करनी होती है, कम्युनिकेशन दूसरों से भी करनी होती है, और कम्युनिकेशन साइलेंट भी होती है, कम्युनिकेशन शोर मचा के भी होती है, कम्युनिकेशन लिख के भी होती है। कम्युनिकेशन गोज थ्रू एवरी मीडियम। बिना कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता है। आप कम्युनिकेशन से भगवान से भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। यू कैन मीट गॉड, यू कैन मीट हुएवर यू वांट। कम्युनिकेशन ड्रीम्स के थ्रू भी होती है, कम्युनिकेशन बुक्स के थ्रू भी होती है। आपको कुछ समझना है तो बुक पढ़नी पड़ेगी या लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, तभी समझ आएगा, वो भी एक कम्युनिकेशन है। आपको लिखने की आदत है, वो भी कम्युनिकेशन है। आपको सोचने की आदत है, वो भी कम्युनिकेशन है। आप कहेंगे सोचने के, हाउ यू थिंक दैट, बाई थिंकिंग यूर कम्युनिकेटिंग, यस बाई थिंकिंग यूर कम्युनिकेटिंग विद नेचर। आप सोच के नेचर से बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, और आपका अपना आप होना ही नेचर है। अपने दिमाग से बात कर रहे हैं, दूसरे के दिमाग से बात करें। आपका दिमाग इतना शक्तिशाली हो जाए कि आपके दिमाग की शक्ति से दूसरे दिमाग में पहुंचा सकती है, ऐसा भी होता है। लेकिन आप इस बात को मानेंगे नहीं। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होता है। जब आपकी शक्ति बढ़ जाती है तो वो दूसरी शक्ति खींच सकती है। शरीर का हिस्सा है, इसलिए हम उसको लिंक करके समझना चाहते हैं कि माउंट्स क्या हैं, क्या रियली माउंट्स हैं या खाली एक हथेली, क्या छोटा सा कंटूर। और ब्रेन तो हम जानते हैं ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे करना चाहिए। हम मेडिकल नहीं जान रहे, इसका मेडिकल नहीं जानना चाहते, हम इसका स्पिरिचुअल, इसकी पावर ऑफ सोल, जब थर्मोसोल कह रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है क्या? कोई वर्ल्ड अलग से नहीं है, आपके अंदर ही। स्पिरिचुअल वर्ल्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपके अंदर सोल काम करती है, वो अपना संसार खुद बनाती है, उसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कोई ज्योग्राफिकल या जियो टेक्निकल नहीं है। वो वर्ल्ड जो आपको दिखेगा किसी और को नहीं दिखेगा। वो वर्ल्ड, वो आत्मा का वर्ल्ड जो आपके माइंड में है, वो आत्मा का वर्ल्ड जो आपकी सोच में है, वो आत्मा का वर्ल्ड जो आपको दिखाई देता है लेकिन आप पहचानना नहीं चाहते। यू कैन सी दैट विजनरी, यू कैन सी दैट वर्ल्ड बाय योर विजन, but you are unable to recognize it because you can't recognize it until you have augmented your power. जब तक आपने अपनी पावर नहीं बढ़ाई वो आपको नहीं दिखेगा। ने ये कर दिया, उस ग्रह चाल ने ये कर दिया, आपके ऊपर तो ग्रह आ गई। अरे भाई, ग्रह किसके ऊपर नहीं आएगी? आप सोचिए, सोचिए आप जरा। आई कब इंसान सोच सकता है, मानव सोच सकता है। सूरज अपना काम कर रहा है, सौरमंडल अपना काम कर रहा है, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, हवा अपना काम कर रही है, पानी अपना काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो भाई, आप जिस सिस्टम में रह रहे हैं, उस सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम का नाम है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सूर्यमंडल, सोलर मंडल कह सकते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए। एक ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा इस यूनिवर्स का, जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम, सौर मंडल।
इसमें जो भी मेंबर्स हैं इस सौरमंडल के, उसको हम ग्रह कह देते हैं। अर्थ है, मार्स, मंगल है, सूर्य तो है ही है, जुपिटर, जो भी है, मरकरी, उनके साइंटिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। एक सिस्टम है, हमारा माइंड कैसा है, हमारे हाथ कैसे हैं, हमारे पैर कैसे हैं, ये सब यूनिट में आएगा, उसका इफेक्ट आपको होगा। अब सोलर सिस्टम में रह रहे हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ का इफेक्ट भी आएगा, सूरज की रोशनी का इफेक्ट भी आएगा, हवा का इफेक्ट भी आएगा, वैक्यूम का इफेक्ट भी आएगा, और वो जो ग्रह हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं, जो बाहर नहीं, हो गया, ये टाइम पूरा हो गया। कहते हैं ये आदमी मर गया, अब कहते हैं 1 साल पूरा होना चाहिए, तब हम उसकी वो करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, या उसको कुछ उसके नाम पे करेंगे, कहते हैं ना लोग। कुछ कहते हैं नहीं जी अभी कर दो, 13 दिन में कर दो, ऐसे भी लोग हैं। आप टाइम को अपने हिसाब से मूव करना चाहते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं टाइम आपके हिसाब से मूव नहीं करेगा। टाइम अपने हिसाब से मूव करेगा, सिस्टम अपने हिसाब से मूव करेगा। उसको आप ग्रह चाल कह लीजिए, उसको आप कौन सी, अगर कोई नुकसान आपका हो गया, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, जैसे मेरी टांग में प्रॉब्लम आ गई थी, मैं गिर गया था, मेरे ऊपर दरवाज़ा गिर गया था, हड्डियाँ टूट गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रह चाल आ गई। कुछ लोग आए कहने लगे ये ग्रह दोष है। अरे यार कोई ग्रह दोष नहीं है, ये फजूल की बातें छोड़ो, ये पंडितों के चोचले, ये पंडितों की फ्रेमिंग, ये फैब्रिकेशन, ये बंद करो। एक्सीडेंट हो गया हो गया, ग्रह क्या करेगा, ग्रह ने आगे एक्सीडेंट किया क्या? कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई होगी, हमने ध्यान नहीं दिया होगा, या ऐसा होना होगा, कुछ भी आप कह सकते हो जो होना है। अगर हम अच्छा होता है तो उसकी तो बात नहीं कहते ग्रह चाल है, बुरा पे ग्रह चाल आ गई। इसलिए ये बातें नॉन साइंटिफिक हैं। जब जब जो होना है वो तो होना है, उसे ना मैं रोक सकता हूँ ना आप, क्योंकि बर्थ होना है तो होना है, डेथ होनी है तो होनी है, क्या कोई रोक सकता है? फंक्शनिंग आपकी बियॉन्ड कंट्रोल है। बताइए कोई दुनिया में वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, तो क्या कि मैं प्रूव कर सकता हूँ बॉडी कैसे चलती है? नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं, इस बात को भी समझना पड़ना चाहिए। हर बात हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इस बात को भी समझना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सोचा कि इस बात को साइंटिफिकली या इस बात को रिलेटिवली समझा जाए। जब मैं रिलेटिवली कहता हूँ तो मैंने, इसका मतलब है हमारी बात को रिश्ता बनाना नंबर्स के साथ। हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है, हम आर्बिट्रली बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं जी मैंने कह दिया वही सही है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, याद रख लीजिए, मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग में समझाया जाता है, साइंस में समझाया जाता है, एजम्पशंस के बेस पे, केसेस के बेस पे, रिलेशंस के बेस पे। हर चीज़ की एक रिलेशन होती है। रिलेशन का मतलब रिश्तेदारी से नहीं है, रिलेशन का मतलब है आपका इस चीज़ से क्या रिश्ता है, जो चीज़ हमने मेजरमेंट कर डाली है, इस तरह की बातें। तो ये बातें समझना एक अलग चीज़ है, इन बातों का एनालिसिस करना अलग चीज़ है। हम जब किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो एक अलग दुनिया होती है। एनालिसिस का मतलब है अपने आप को झोंक देना उसमें, उस बात में झोंक देना, अपने आप को मर्स कर देना, इमर्स कर देना, डुबो देना उसमें। अगर
बॉडी और ये आत्मा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही शरीर है। वो लाइव है तो शरीर एक्टिव है, वो लाइव नहीं है तो उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा सॉल एक ही बात है, या आप कह सकते हैं आपकी अपनी शक्ति जो भगवान ने दी है आपको, उसके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे नहीं। उस शक्ति का आप एब्यूज़ भी नहीं कर सकते। वो शक्ति आपकी है, उसको बढ़ाना आपके हाथ में है और उसको ख़राब करना भी आपके हाथ में है। ना मैं धर्म की बात करूँगा, ना मैं कोई और बात करूँगा, ना ग्रहों की बात करूँगा। मैं सिर्फ बात ये करूँगा, अपनी शक्ति को प्रिजर्व करें और काम में लगाएं। ये शक्ति ऐसा बैंक है, जितना इसको यूज़ करें उतना बढ़ता है, घटता नहीं। क्योंकि ये मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल पावर है, वेल्थ पावर है, माइंड पावर है, सिस्टम पावर है। ये वो चीज़ है जिसकी आपको पेमेंट नहीं देनी, कोई पेमेंट नहीं देनी इसकी, कोई बिल नहीं आपके पास आएगा, कोई क्लेम नहीं आपके पास आएगा कि आपने इतना ड्यू बाकी है। आप जितना इसको यूज़ करेंगे उतना ये रिफ़ाइन होगी और उतनी पावरफुल होगी। बस आपको सिर्फ इतना करना है, थोड़ा खाना खाना है, थोड़ा पानी पीना है, एक्टिव रहना है, थोड़ा सोना भी है, काम भी करना है। अगर आप पैसे के ही पीछे भागेंगे, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है पैसे के पीछे भागना। पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, ये भी सत्य है। लेकिन सब कुछ पैसे से होता है, ये सत्य नहीं है, ये सच नहीं है कि सब कुछ पैसे से होता है। इस बात को मानना ही बेवकूफ़ी, लेकिन पैसे के बिना भी सब कुछ नहीं होता। खैर, वो एक बहस है बेकार की। हम यहाँ बात कर रहे हैं नंबर्स की, और जो नंबर आत्मा के हैं उसकी, और नंबर नहीं। हम इसमें पूरी कैलकुलेशन करते हैं, पूरी कैलकुलेशन, और फिर समझते हैं नंबर आखिर हैं क्या। जब इन 9 नंबर का मतलब आप समझ जाएंगे, 0 का क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का क्या, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ। क्योंकि आप प्रॉब्लम मानेंगे नहीं किसी को। अरे ठीक है यार, लॉजिक नहीं है इस बात में, तो क्या प्रॉब्लम है। आप कोई बात करते हैं किसी से, आप क्या मान लेते हैं ऐसे ही? आप किसी बात को ऐसे मान लेते हैं? नहीं मानते, ऐसे आप सोचते हैं। जो नहीं सोचता वो आदमी है ही नहीं। अगर जो व्यक्ति सोच समझ के बात नहीं कर सकता, सोच समझ के काम नहीं कर सकता, छोटा सा भी काम क्यों ना हो, चाय बनाने का भी काम क्यों ना हो, रोटी बनाने का काम क्यों ना हो, फर्श की सफाई का भी काम क्यों ना हो, छोटे से छोटा काम भी, या कोई शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी सोचना पड़ता है। अगर आप वो भी सोच नहीं रखते तो आप क्या सोच रखते हैं, आप जान लीजिए। बहुत बड़ी बात है ये। कोई भी काम हो, माइंड आपके पास है। आप मना कर सकते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को कोई मना नहीं कर सकता कि माइंड है। वो अलग बात है किसके कितना है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, पढ़ नहीं पाए, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, लेकिन माइंड बहुत तेज है। और ऐसे ऐसे भी देखे हैं, पीएचडी की डिग्रियां हैं, लेकिन माइंड डफरों का है। क्या करेंगे आप? उसका मतलब ये है कि उन्होंने शिक्षा को खाली डिग्री लेने के लिए हासिल किया, समझने के लिए नहीं। समझने के लिए डिग्री नहीं, दिमाग चाहिए। दिमाग की फर्टाइल चाहिए, डफर नहीं, फ्यूटाइल नहीं। फ्यूटाइल और फर्टाइल फ़र्क है दोनों में। हम घमंड नहीं कर रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शक्ति जो हमारे पास पैदा होने के समय से है, बल्कि कहिए तो पहले से है। क्योंकि शरीर का निर्माण भी आत्मा करती है। भगवान का रिप्रेजेंटेटिव आत्मा है, भगवान का टूल आत्मा है, भगवान का औजार आत्मा है। किसी ने देखा है पूरा प्रोसेस कभी, किस तरह से ये निर्माण होता है शरीर का? कोई दिखा सकता है, कोई प्रूव कर सकता है? आज की तारीख में भी ये नहीं दिखेगा कि शरीर का निर्माण कैसे हुआ। हाँ, हो गया, हो गया। फिर बात गलत हो जाती है थोड़ी सी, समझाने की बात और होती है। हम कहते हैं आत्मिक संसार, यस,
हम आत्मा ही तो हैं। किसी ने लिखा पोस्ट पे, फेसबुक पे, हम लोग तो आत्मा के पीछे भागते रहते हैं, हम विज्ञान के पीछे नहीं भागते। अच्छी बात है, आपकी समझ अच्छी है, मैं यही कहूँगा। हम विज्ञान के पीछे नहीं भागते, हम आत्मा के पीछे भागते हैं। लेकिन आपने ये नहीं बताया आत्मा होती क्या है, आत्मा क्या है, नाम आत्मा क्यों है इसका, स्पिरिट क्यों है इसका, सॉल क्यों है इसका। हम साइंस के पीछे नहीं भागे क्योंकि वो हमारी गलती थी, लेकिन साइंस में तो आत्मा ही है। आज भी हम क्लेम जरूर करते हैं हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, सच तो कुछ नहीं किया। जो भगवान ने किया उसके सामने तो हमने कुछ नहीं किया। आप सोचिए, इस सौरमंडल का निर्माण, इस ब्रह्मांड का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सिस्टम, construction of universe, or how many universes are there, I cannot say. You can only assume, you can only speculate. कल्पना की दुनिया में कह सकते हैं इतने ब्रह्मांड होंगे। आप ये सोचिए, क्या व्यक्ति मशीन से बनता है? नहीं बनता ना, बनता तो है। ये जमीन जो बनी, सौरमंडल जो बना, कितने सारे बड़े बड़े ग्रह, जिस जमीन पे हम रह रहे हैं, तो आप जानते हैं क्या साइज है उसका? जिन्होंने जियोलॉजी पढ़ी है वो जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है। लेकिन मेजरमेंट है, विज्ञान में है। विज्ञान ज्ञान से ऊपर नहीं है, ज्ञान के नीचे आता है। आत्मा एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जो एटॉमिक पावर से ज़्यादा पावर रखता है। एटॉम, एक्चुअली ATOM, एटॉमिक, एटॉमिक से बना आत्मा, एटॉम। आपका यूनिट है जो न्यूक्लियस, आपका जो एटॉम है वही आत्मा है। वो शायद आपको दिखेगी नहीं, लेकिन है। इट इज एटॉमिक साइंस, इट इज एटॉमिक साइंस ऑफ पावर दैट यू हैव। आपकी शक्ति, आत्मा की, जिसको हम स्पिरिट भी बोलते हैं, वो शक्ति कैसे भी आपको मिले, वो एक एटॉमिक पावर है। इस बात को समझ लीजिए। साइंस है ये, साइंस भ्रम वाली नहीं, रियल वाली। आप सब शरीर में रहते हैं, शरीर कहते हैं 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, लेकिन फिर भी चल रहा है। वो चेन रिएक्शन चलता रहेगा जब तक आप रहेंगे। और वो वेव्स जो आपके अंदर हैं आत्मा के नाम पे, वो बहुत गुस्से वाली भी होती हैं, भूखी भी होती हैं, क्रेजी भी होती हैं और ठंडी भी होती हैं। ये आप कैसे रखें उसके ऊपर है। सही भी पूछें, बिना आत्मा की शक्ति से ना विज्ञान चलता है, न ज्ञान चलता है, न दिमाग चलता है, न शरीर चलता है। इसको दिखाई नहीं देती, ये सच बात है, लेकिन इफेक्ट तो है। आप कभी कोशिश कीजिएगा, जब आप थके हो बहुत, यह टायर्ड, आप रेस्ट चाहते हैं, लेकिन आप काम भी करना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, आप काम करते रहिएगा, आपकी थकावट हिस्ट्री बन जाएगी। हमारी व्यक्ति की आत्मा की शक्ति में वो शक्ति है, हर व्यक्ति में है, हर व्यक्ति ही नहीं, हर प्राणी में है। प्राणी का मतलब क्रिएचर, इस ब्रह्मांड में जो भी क्रिएचर है उसके अंदर है। और हम मानव सबसे ऊपर हैं उसमें, शक्ति में, फिजिकल फॉर्म में। ये नहीं कह रहा, मेंटल फॉर्म तो जानवर की भी बहुत होती है, उनकी शक्ति हमसे भी ज़्यादा होती है। जो भी हमारा शरीर, हमारी आत्मा कंबाइन रूम में काम करते हैं, कोलैबोरेशन में। और नहीं तो आत्मा निकाल दें आप शरीर से, ये मैग्नेटिक पावर निकाल दें, तो क्या कहेंगे, डेड बॉडी है। वो मिट्टियाँ उनके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं। वो डिकम्पोज हो जाएगी। और डिकम्पोज कौन सी चीज़ होती है? डिकम्पोज का मतलब कहते हैं, यार रखिए, जल्दी कीजिए, बर्फ़ रखिए, एसी में रखिए, कहते हैं ना, कहीं डिकम्पोज ना हो जाए। डिकम्पोज वही होती है जो ऑर्गेनिक होती है, शॉर्ट टर्म डिकम्पोजिशन कहते हैं उसको। पेड़ होता है, डिकम्पोज हो जाता है,
कोई भी चीज़ जो डिकम्पोज हो जाए, जो अपने केमिकल फॉर्म को चेंज कर दे, अपनी कंपोजिशन को चेंज कर दे, अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, हम कहते हैं पोजीशन कंपोजिशन, अपने कंटेंट्स को चेंज कर दे, कोई भी चीज़ हो चेंज कर दे, उसी को तो कहते हैं डिकम्पोज हो गई। तो हमारी बॉडी भी वही है, ये सिस्टम स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। हाँ, इसका यूज़ करना हमारे हाथ में है, इसका यूज़ करना, इसको चलाना, इसको टूल बना के इस्तेमाल करना, प्रयोग में लाना। और ये कभी बंद नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। शरीर खत्म हो जाए, ये पावर ख़त्म नहीं होती। ह्यूमन स्पिरिट, that is strength or power of soul, dominates every creature. In this universe, human being is top physical and soul-based entity, dominated by spiritual powers, directly provided by system that God produced. This system is fully automatic, everlasting and permanent, till person enjoys earth planetary home. Since spiritual world dominates physical world, since the spiritual world dominates physical world in its true sense, characteristics of spiritual properties shall definitely affect person in all relevant respects, and these effects should be taken note of. Spiritual parameters inevitably sorry spiritual parameters inevitably affect right hand palm which remains busy most time, and as right hemisphere is linked to left hemisphere or left arm, and vice versa, left hemisphere of brain does not come to rest immediately in comparison to right hemisphere. Permanent characteristics of person can be known from interpretation of left hand for its connection to और अंदर प्रभार के तिरंगे, ये सब इसमें जो दिया है हमने, इसलिए नहीं कि आपको खाली समझाना है। मैं ये सब आपको इस टाइम एक तरह से, क्योंकि अगली बार मुझे एक्सेल पे जाना है, वर्कशीट पे समझाने के लिए कि कैसे ये चार्ट काम करता है, वो बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो एक तरह का कह सकते हैं बैकग्राउंड समझाया गया है, थ्योरी इसकी थोड़ी थोड़ी। यू मे अंडरस्टैंड, यू मे नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट गारंटी, बिकॉज दिस इज़ अ मैथमेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट। हिसाब किताब पे आधारित, कैलकुलेशन पे आधारित ये सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन समझना भी आसान नहीं है। लोग मैथमेटिक्स से बहुत दूर भागते हैं। अरिथमेटिक ये ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है कि इसको कैलकुलेट सिक्स 97-98 में। वैसे तो ये तैयारी हमने सन 93 से की, उस टाइम नहीं था कुछ हिसाब किताब करने के लिए, सब कुछ कैलकुलेशन। क्योंकि अब तो खाली समझने की बात है कि हम क्या क्या समझाना चाहते हैं, क्या नहीं समझाना चाहते, क्या समझना चाहते हैं। अब जब हम आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे
I'll demonstrate to you how these charts are produced. वो एक दो फाइल हैं जिसमें आपको काम करना है, किसी भी नंबर की एंट्री करके, और रिजल्ट आपके सामने होंगे। ये सब बातें जो हम बता रहे हैं समझाने के लिए, जस्ट एक्सप्लेन टू यू, आई एम टेलिंग हाउ कैन यू इंटरप्रेट दैट। ड्यूरिंग टॉक मुझसे कोई एरर हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन ज़रूरत वही आ जाती है कि कहाँ पे आपने क्या समझा। हर व्यक्ति की समझ डिफरेंट है, एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, और आप उसको ही समझने का प्रयास करें। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी, बोथ आर देयर। इट्स कॉमन सेंस, हाउ कैन यू प्ले विद दिस, हाउ कैन यू मूव विद दिस। अगर आप इस बात को क्लियर कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी इसमें। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए, कुछ एग्जाम्पल्स रेल के और देंगे, ताकि आपको पता लगे ये फाइल है, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इस फाइल में जाके। ये अब आपके ऊपर है, मेरा काम तो समझाना ही था। मैं चाहता था, जो मैंने इतने साल से इस पर काम किया, पैसे के लिए नहीं किया मैंने काम, मुझे जो मिला ऊपर वाले की शक्ति से, मेरे लिए नहीं है वो, मुझे क्यों देगा? सोचिए, अगर ऊपर वाला किसी को कुछ देता है फ्री में, इसलिए नहीं देता कि मैं उससे पैसे कमाऊँ। ठीक है, पैसे भी लोग कमाते, मैं ये नहीं कह रहा वो पाप है, लेकिन पैसा कमाना ही तो सब कुछ नहीं है ना। अगर कोई, मेरा प्रोफेशन भी नहीं है ये, सिंपल सी बात है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ इसका, और ना ही बनना चाहता हूँ, इसका कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये अपने आप कोई चीज़ मिलती है, वो प्रोफेशन नहीं हो सकती है। मैंने कोई इसकी डिग्री नहीं ली है, मैं इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया हूँ, और ना ही मैंने कोई किताब पढ़ के समझा है। अगर कोई चीज़ आपको ऐसे मिल जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये ऊपर वाले ने आपको दी है, जाइए मेरी तरफ से इसका लोगों को शेयर कीजिए उसकी तरफ से। मैं ये कभी नहीं कहता कि ये मैंने किया, क्योंकि मैंने किया भी नहीं। आप कह सकते हैं कलेक्शन सेंटर हूँ, ये आप कह सकते हैं। मुझे उसने, जैसे आप कोई डस्टबिन बनाते हैं, कोई कूड़ादान बनाते हैं, या कोई और जगह बनाते हैं, वही हूँ मैं, एक बिन जिसमें उसने डाल दिया, और वो बिन कहाँ जाती है, किधर देती है, ये भी एक टेस्ट है। और जब उसने मुझे दिया किसके लिए दिया होगा? मेरे लिए तो नहीं दिया होगा। मैं अपने समझ समझ के क्या करूँगा इसका? ये दिया इसके लिए कि चाहिए, इन सब में बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट दिस टू ऑल, डिसेमिनेट दिस इन्फॉर्मेशन एवरीवन। और मैं समझता हूँ यही ऑब्जेक्टिव है। पैसा कमाना एक मंजिल हो सकती है, लेकिन दूसरी मंजिलें भी तो हैं। पैसा कमाना एक स्टेटस हो सकता है, लेकिन दूसरे स्टेटस भी तो हैं। जब एक चीज़ फ्री मिली हमें, ये शरीर, क्या हमने खरीदा? नहीं ना। तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? कुछ नहीं। हमारे शरीर की प्रणाली का कंट्रीब्यूशन किसका है? किसी का नहीं, ऊपर वाले का है। जो भी सिस्टम बनाया है, सिस्टम में हम चल रहे हैं, किस बात का घमंड? लेकिन वो भी किसी ना किसी को चुनता है अपने लिए, कि जाओ भाई ये मेरा काम करो, और करके आना, फिर मैं दूसरा काम दूंगा। इतनी सी तो बात है। इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो आप लालच से बाहर आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमाएं खाएं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कमाएं, खूब खाएं, लेकिन याद रख लेना, ये सब जानते हैं, और मैं रिपीट भी नहीं कर रहा, खाली ही जाओगे, ये शरीर भी नहीं जाएगा। इस चीज़ को माइंड में रख लेना। होंगे आप अरबपति, होंगे खरबपति, होंगे आप पति, ना पति जाएगा साथ में, ना खरबपति जाएगा साथ में, कोई साथ में नहीं जाएगा। साथ में तो वही जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, आत्मा, सॉल, और कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब परमानेंट जाएगा, परमानेंट है वो, इसलिए बात को बताने की
तरफ भागना छोड़िए, इस मेटल की तरफ भागिए जो आपकी सीवी को सेट कर देगा। और सीवी के बिना जॉब नहीं मिलता, आप जानते हैं। जॉब मिलना तो छोड़िए, इंटरव्यू के लिए कोई बुलाएगा नहीं। खैर, वो तो मजाक हो गया। मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भ्रम लोग पाल लेते हैं कि ये आदमी बेवकूफ़ है, ये आदमी ज्योतिष है, ये आदमी न्यूमरोलॉजिस्ट है। मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। यस, बाई क्वालिफिकेशन मैं इंजीनियर हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, इंजीनियर बन गया। सारी ज़िंदगी तो वो भी नहीं की। कुछ कुछ वर्ष पढ़ाई करो तो आप कुछ बन जाते हैं, वो भी कमाने के लिए, खाने के लिए। सेवा तो हमने भी नहीं की। प्रोजेक्ट ज़रूर किए, कुछ किए हैं यहाँ पे देश से विदेश में, लेकिन अगर हमने सेवा की, नहीं, मैं नहीं मानता। सेवा किसकी करूँगा? हाँ, एक चीज़ ज़रूर माइंड में रखता हूँ कि ये ज़मीन, ये सौरमंडल किसी की प्रॉपर्टी में नहीं आता। कोई देश वेश नाम की चीज़ नहीं है दुनिया में, ज़बरदस्ती बनाई गई है। सब एक ही देश है, उसका नाम पृथ्वी है। सब एक ही जगह है, उसका नाम सौरमंडल है, क्योंकि एक ही सूरज है वहाँ। सब उसी को यूज़ करते हैं, पूरे विश्व के लोग। हवा सब उसी की है, एक ही हवा, एक ही सूरज की रोशनी, तो अलग तो हम हो ही नहीं सकते। हाँ, मैंने कहा रिलेटिवली अलग हैं, क्योंकि हमने कंट्रोल्स लिए में अपने ऊपर। ये मेरी जगह में नहीं आना, मेरी जगह, यहाँ मेरी जगह आ गई। यही फ़र्क है सोच का। जब अपने ऊपर बात आती है तो मेरी जगह हो जाती है, वैसे कोई जगह वगह नहीं होती। ये भी सच है। खैर, अब हम ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। मैंने देखा लोग पढ़ते नहीं हैं, इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। और ये तो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिससे कोई पैसा नहीं मिलना किसी को। टीवी पे बहुत आते हैं लोग, फेंक फाँक के चले जाते हैं। ना मैं फेंक रहा हूँ, ना मैं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने आप को कैसे ट्रेन करें। सब ऑलरेडी है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर कुछ लोग नुकसान करते हैं, फ़ायदा करते हैं। कुछ लोग समझते हैं मंदिर जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मस्जिद जाएंगे तो ये हो जाएगा। सॉल में है, भगवान आपके पास है, बस समझने की ज़रूरत है। भगवान आपके पास किसी को फोर्स करने नहीं आता। वो तो खाली देखता है कि जो मैंने इसको काम दिया वो करता है कि नहीं करता है। इतनी सी बात है। और ये नंबर मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि नंबर से रिलेशन है, कोई नंबर से परफेक्ट नहीं है। अगर आप समझ लें कि परफेक्ट है, ये नहीं। परफेक्ट तो आप कर सकते हैं इसको। परफेक्ट सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्शन आपके हाथ में है। कुछ लोग कहेंगे कि सुस्ता रहा है, ढीला ढीला बोल रहा है। देखिए, व्हेन आई स्पीक समथिंग अबाउट यू, आई डोंट स्पीक अबाउट you, I speak to a system. And system is very important because system works everywhere. You have to establish your system. सिस्टम आपको बनाना है अपने लिए, या आपको सिस्टम में है उसको चलाना है अपने लिए। If you are able to make system, then you are system organizer. If you are moving in a system, then you are system follower. Either you have to follow it or you have to organize it. If you can't like it, if you do not like some system, you can amend it. But for that, you have to enter that system. If you want to amend some system, means you have to enter that system, you have to understand that system, you have to find problems in that system, then you have to amend those systems, those problems, you have to check them. अगर आप सिस्टम में नहीं जाते हैं तो अपना बनाइए, कौन रोकता है आपको। लेकिन क्या आप कर सकते हैं, बात तो ये आती है। सिस्टम वही बना सकता है जो डिसिप्लिन्ड है। सिस्टम वही बना सकता है जो डिटरमाइंड है। सिस्टम वही बना सकता है
जो बलिदान दे सकता है, जो सेक्रीफाइस कर सकता है, टाइम की सेक्रीफाइस, रिलेशंस की सेक्रीफाइस, एंटरटेनमेंट की सेक्रीफाइस, कंसंट्रेशन करना। सिस्टम कंसंट्रेशन के बिना बन नहीं सकता। सिस्टम को बनाना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए। सिस्टम ही तो है जो गिनती है। क्या है ये? सिस्टम ही तो है जो नेचर है। हमारा शरीर सिस्टम, हमारा नेचर सिस्टम, हमारी ज़मीन सिस्टम, आसमान सिस्टम। क्या सिस्टम नहीं है? सामाजिक सिस्टम बनाए जाते हैं, टूट जाते हैं। सिस्टम को समझिए। सिस्टम आपके हाथ में है। आपका क्या स्केड्यूल है वो भी एक सिस्टम है, क्या टाइम टेबल है वो भी एक सिस्टम है, क्या परिवार है वो भी एक सिस्टम है। अलग अलग सिस्टम है, ढांचा कह लीजिए इसको आप, लेकिन वर्क करना चाहिए। बस मेन बात ये है, अगर आपका सिस्टम ऑपरेट नहीं कर रहा है तो वो डिफेक्टिव है। कहीं ना कहीं डिफेक्ट तो है, तभी तो वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, नहीं तो ऑपरेट करना चाहिए था। ये बात उतनी ही ज़रूरी है जितने नहीं। नंबर्स अपने आप में एक सिस्टम है। हमने कल्पना की, हम इसको समझें, और हमारी कल्पना ने हमें समझाया। और वो कितना सच है कितना नहीं ये तो आप देखें। सिर्फ आपको समझने पॉइंट्स कि ये कौन से शरीर के हिस्से में क्या नंबर है। और अगर थोड़ा आगे जाऊँ मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं योनि टू मस्तिष्क, माइंड एंड ओरा। आपने शायद सुना होगा। योनि क्या होती है आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये हेक्सागन जो आपके सामने है, एक तरह से ये आप देख रहे हैं फिगर, यहाँ ये फिगर आप देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 6 नंबर्स की, और ये बीच में स्वास्तिक। हमने लिखा कालिका डिक्टेट्स। कालिका क्या है? हम यहाँ कालिका को शेप में नहीं, समय में मानते हैं। काल, समय। हम इसको शरीर से रिलेशन देते हैं। आखिर क्या है? योनि। ये एक ऐसी मशीन, ऐसा चैम्बर जिसमें प्रोडक्शन हो सकती है। किसकी? मटेरियल की, जो मानव का शरीर है। आप देख रहे होंगे 8 8 8 8 8 8 6 6 6। ये देखिए, ये हम वुमेन की बात कर रहे हैं जो दुनिया को बनाती है। 1 2 3 4 5 नेगेटिवली, सी ये 5 यहाँ से यहाँ गया, 6 7 8 और 9 तो जीरो में आ गया जैसे पहले, इसमें दिखाया नहीं है। अब इसकी एक अपनी कंस्ट्रक्शन है हर एक के अंदर। वो क्या है? हमने अपने आप नहीं लिखा, रेफरेंस है। एक नंबर तो आप जानते हैं। पहले हम योनि की डिस्क्रिप्शन के लिए, योनि या आप कह सकते हैं आत्मा की एंट्री, आत्मा की एंट्री का वो स्विच पॉइंट, का वो सॉकेट, का वो पैनल दोनों में होता है। मेल में भी, फीमेल में भी, पुरुष में भी, स्त्री में भी। उसमें क्या है? एक्चुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दोनों में, और प्रोडक्टिव ऑर्गन ये है। ये प्रोडक्टिव ऑर्गन माइंड, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एंड्स पे। इसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये फील्ड। इस सर्किट को पूरा करने के लिए ये एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, ये पूरी एप्लीकेशन है। इसको चलाने के लिए, इसको इल्यूमिनेट करने के लिए, रोशनी में लाने के लिए ये सब चलता है। यहाँ और 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर वो चैम्बर ऑफ कंस्ट्रक्शन, चैम्बर ऑफ जनरेशन कह सकते हैं।
यू कैन कॉल इट चैम्बर ऑफ जनरेशन। अब देखिए यहाँ टनल है, शुरुआत से टनल है, ये आप देख रहे हैं टनल। उसके पीछे एक हाउस है, हाउस ऑफ कॉमर्स, हाउस ऑफ जनरेशन, जिसको वॉर्म कहते हैं। नाम वही दे रहा हूँ लेकिन फंक्शंस अलग हैं। इसमें बहुत कुछ है। छोटी सी अंधेरी कोठरी, छोटी सी अंधेरी कोठरी, लाइट जहाँ नहीं पहुँच सकती, जहाँ लाइट नहीं पहुँच सकती, हवा नहीं पहुँच सकती, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती है एक ऐसी चीज़ की जो उससे बाहर आने के बाद बहुत पावरफुल होती है। इसमें क्या है, पहले हमको उस गेट को देखना होगा, उस बाहर की शक्ति को देखना होगा, जिसको हम क्या देते हैं, पूरा नाम हमने कालिका दिया क्योंकि यहाँ समय प्रधान है, यहाँ टाइम इज प्राइम, टाइम इज डोमिनेटिंग, इसीलिए तो काल कहा है। काल इसलिए कि उसके अंदर कालिंग हो रही है, ऑक्यूपेशन हो रही है किसी चीज़ की, जो हम कोई नहीं कर सकता, हम नहीं जानते उसके बारे में। उसको काल का कह दिया। काल का नाम, काल का मंदिर से लगा लें, किससे लगा लें, वो आपके हाथ में है। उसके बाद हमने कहा उसकी प्रोटेक्शन की गई वहाँ, और यहाँ एक और नंबर 4 पे फैक्ट्री, प्लांट लगे हैं, प्लांट जिससे फूड सप्लाई होता है इस चैम्बर को। ये प्लांट जिसको हम कह सकते हैं, कहते हैं गायत्री है, दूध देती है, फूड देती है, कहते हैं, हम इसको मान लेते हैं, हम फर्स्ट मान लेंगे इस बात को कि ये प्लांट है जिसका नाम गायत्री रख दिया आपने। इंडिपेंडेंट प्लांट लेकिन इम्पोर्टेंट प्लांट, सिग्निफिकेंट प्लांट। अब चलिए हम चलते हैं, 2 बातें सामने आ गई, एक चैम्बर का नाम कालका और प्लांट का नाम गायत्री। अब आइए उस जगह पे जहाँ हम कहते हैं कि एक टॉप पॉइंट है, एक बॉटम पॉइंट है। टॉप पॉइंट को हमने दुर्गा कह दिया क्योंकि वो एक तरह से पीक है, दुर्ग है, और बॉटम पॉइंट को हमने दूसरा नाम दिया। क्या नाम दिया हमने? उसका नाम दिया एक प्रोटेक्टिव मेजर, एक प्रोटेक्शन। उसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह बनाई, लैंडस्केप, जिससे प्रोटेक्शन ले, और उसको हमने कहा चिन्ना है, चिन्ना। फिर दूसरे को हमने कहा साथ में बगल में है, थोड़ा टेपर्ड है, उसको बगला कह दिया, चिन्ना कह दिया, बगला कह दिया, कुछ को दुर्गा कह दिया। और फिर वो एंट्री जहाँ से हमको अंदर जाने का रास्ता मिलना है, उसको हमने मात कह दिया। वो पोर्शन जो मात है, मात्र शक्ति, उसके अंदर गए तो हमको एक टनल मिली। उस टनल में गए तो क्या कहेंगे, आनंद मिला। नागिन भी एक तरह से वो कह सकते हैं उसको आप। और उसके अंदर गए तो हमको अंधेरे वाला कमरा मिला, वो कमरा जिसमें प्रोडक्शन यूनिट है, जिसके अंदर मशीन्स जो दिखती नहीं है लेकिन लगी हैं, उनके ऑपरेशन किसके हाथ में है? उसकी ऑपरेशन बहने वाली ईश्वरी, भुवनेश्वरी बोलते हैं जिसको, एक ऐसी बनाने वाली शक्ति, मटेरियल बनाने वाली शक्ति, जिसको हम महालक्ष्मी कह देते हैं, नाम है, कुछ भी दे दीजिए। और ऐसी शक्ति जो उसको शेप दे सही, उसकी फोकस सही रखे, उसके नक्शे के हिसाब से बनाए, उसको सौदासी कह देते हैं। दाह को सही करने वाली सौदासी, दाह जो बनना है
दाह ही तो बन रहा है, बॉडी बन रही है, 100 दाह से, दाह। और उसके बाद फिर वही फर्दर फिनिशिंग टच, चाहे वो आँखों का हो या शरीर का हो, माइंड का हो, वहाँ पे कालियम तारा, ये नाम है। इन नामों को समझ जाएंगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी बात। बहू, हमने बहू कहा, जी घर में बहू होती है, उसका काम क्या होता है? उसका काम यही होता है, भुवनेश्वरी जो करती है। लक्ष्मी आई है घर में, कहते हैं कौन लक्ष्मी है? वो जिसने शरीर देना है वो लक्ष्मी है, वो शरीर की लक्ष्मी है। वो शरीर वहाँ पर भी बनना है तो वहाँ भी लक्ष्मी है। इसी तरह से शरीर का दाह करना, दाह बनाना, ये सब बातें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि हम जो समझते हैं खेल, वो खेल नहीं है। हम जो समझते हैं कि बस ये हो गया, काम हो गया, ये काम आपने नहीं किया, ये तो नेचर ने किया हुआ है, आप तो खाली यूज़ कर रहे हैं। आप समझते हैं वही सब कुछ है। और हमने कहा जी प्रोसेस है, इसलिए हमने हेक्सा डायग्राम बनाया। डबल ट्राइंगल, देखिए ये डबल ट्राइंगल, और इसके रिवर्स में ऐसे या ऐसे भी आप लेंगे तो भी दूसरे डायरेक्शन में। अंदर भी 6 साइड, बाहर 6 कॉर्नर, ट्राइंगल और 6 कॉर्नर। समझ रहे हैं आप? 6 साइडें अंदर, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल एंड 6 कॉर्नर्स। यहाँ भी 6, वहाँ भी 6, यहाँ भी 6। मतलब टेंशन तो आएगी उससे, रोमांस भी आएगा उससे, कंस्ट्रक्शन भी होगी उससे, सारी प्रॉपर्टीज आ रही है ना, आए कि नहीं आ रही? वो सब नेचुरल है, आपके हाथ में नहीं है, वो सब नेचुरल है। ये जो पावर्स हम बता रहे हैं आपको, ये पावर्स तो खरीदी जा नहीं सकती, ये पावर्स मैटेरियल नहीं है, ये पावर्स नेचुरल सिस्टम है। इन पावर्स को लेना बहुत बड़ी बात है। सोल एक्शन पावर सर्किट इट इज, सोल एक्शन पावर सर्किट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ये बहुत दिन से पेंडिंग था समझाना, तो मैंने कहा समझा ही देते हैं, पता नहीं रिकॉर्ड कैसा होगा, मैं नहीं जानता। वही बात, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर 7, फिर 8 और 0 में 9 और ये 5 यहाँ पर। इसको साइंटिफिक आप लेना, इसको मैटेरियलिस्टिक नहीं लेना, समझने की ज़रूरत है। और ये जब समझ जाएंगे, आत्मा का फ्लो शरीर के थ्रू, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोशिश की मैंने समझाने की आपको, समझना नहीं समझना तो आपके हाथ में है, क्या समझें क्या ना समझें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोशिश की हमने समझाने की, और कितना फेल हुए पास हुए आप जाने। और भी बहुत सारे डायग्राम्स नहीं चाहता इस टाइम, मैंने पहले दिखा दिए हैं आपको, क्योंकि ये वीडियो की गारंटी आज मैं नहीं ले रहा। पता नहीं मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट से अबाउट दैट, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट। If you are interested, it's up to your interest, it's not my compulsion. I have done my job, I am doing it, I shall be doing it. I try to explain everything to everyone. If you are understandable, if you can. First of all, remove orthodox from your mind. Don't think that there's superstition. There is no superstition in this, just comparison is there. I'm trying to tell what numbers can do if you use them. It's something that you have to use them, and if you don't use them, you can't do anything. और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं लग रही इसमें, फोरियर इक्वेशन भी नहीं लग रही इसमें, कुछ नहीं लग रहा है इसमें। इसमें सिर्फ लग रहा है थोड़ा सा गुणा भाग, वो भी आपको नहीं करना, वही पकी पकाई आपको मिल रही है, फिर क्या दिक्कत है? बिलीफ की बात भी मैं नहीं कर रहा, ना बिलीफ करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि ये साइंस है, मैथमेटिक्स है। हमारी आत्मा हमारे शरीर में घूमती है, हम उन आत्माओं के अंगों से जहाँ से पास होती है उसको मिला रहे हैं।
just trying to tell what is happening, how it's happening, what you have to do, what you are not to do. All this is really interesting if you can take interest. I'm not saying this is luck. No, it's not luck. It's a process. It's a procedure that we want to understand. And it is very common. You can apply it to everyone. It's very, very simple, not very difficult. I'll give examples of four numbers. We'll take more examples. I'll try to show you same numbers also, which I will use in those illustrations. I don't think being an educated person that is something I'm talking to you is useless. It's not useless relatively. I'm saying again, not primarily. It's very elementary, it's very relative, and it's very interesting as well. And that's where I stand with you. I stand with you and everyone. Now, because I can't explain at length, I'll show you by demonstration later on about these numbers, these worksheet, which I'll show to you in another video, because this is PDF based and I'm trying to show you PDF files. I cannot jump or shift to Excel files now or Lotus file. There is no way, no permission as such in this program. So I will now close this. I understand that. Okay, gentlemen, I'll take your leave now from this video with the hope that you may understand something out of this, and I think I'll meet you again if things go right. I'll meet you again and we'll see what to do, what not to do, and that's where it is required. Now I think you got something, and we will see later on what not to do, what to do. That's very